on our 688th webinar today. Today is World Book and Copyright Day. Very unique day, Book and Copyright Day. So, all writers, all authors, all publishers are celebrating it, number one. And all copyright persons are celebrating it. So, we are also celebrating with Dr. Saket Basu from Canada and Madam Parul Joshi ji from Gujarat. So welcome all the speakers, and I would like to request Professor Dr. V.K. Agnihotri sir to welcome the speakers. Thank you, Professor Pawan Sharma. Namaskar. It's our great pleasure to pay welcome to this seminar's guest speakers. These are most revered persons, especially in the terms of knowledge, presentation, and also, I mean, from every angle, tension-free, irrespective of the topic of the webinar. This is our greatest achievement, that we found such great personalities. The one is Professor Vaidya Parul Joshi ma'am from Gujarat, and our second, I've got no courage to say anyone first or second, but so our other guest speaker after this webinar is our Dr. Saket Basuji, who is a seed specialist in this research work, and he is from Canada. So we are eagerly waiting their approach on today's topic, because the topic is very technical, especially as far as the copyright is concerned. Every person, we teachers, every person is always scared that by quoting any reference to any thesis or any work, or even nowadays take any reference from YouTube, it's difficult that one may be put under the judicial crisis of this copyright. So today we are going to enhance our knowledge with this reference to that what are the modalities of the copyright, and how it may hurt to the owner, the first writer or publisher, and again how can other person be penalized if he or she has not taken prior permission for the academic purpose. So this is what we understand, that what is the importance of copyright and all that. So we are going to listen from these distinguished guest speakers on these topics today. So thank you so very much, and we welcome both the dignitaries, and over to Pawan Sharma ji for the further conduction. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. Saket Kumar Basu. Welcome, Dr. Saket. Now stage is yours. We are eager to listen your really Ojaswi voice. Ojaswi Prakhar. Excellent. Welcome. Thank you, Dr. Sharma. Thank you, Dr. Agnihotri, and welcome to all the dignitaries, speakers, and all my friends and colleagues here on this platform. It's my pleasure to be on this platform. And indeed, as book lovers, it is a great day to celebrate our what do you call this? The World Book Day and dealing with the copyright issues. One of the big challenges that I would like to highlight, other than the good part, is that the book industry is not actually doing very good. I mean, in one short spectrum, some of the publishers are doing good, and in most other spectrums, other publishers are not doing very good. It has been pushed into a very challenging corner. And why is that? It's because of the internet now being made available, and the broadband, wide quality internet and information resources being made available, and online libraries are being made available so easily. And for any kind of scholastic work, people wish to refer on online resources, that the hard copy book market has been impacted. Now, there are two kinds of really books that are in the market that we deal with. One is like the fiction, stories, poems, literature, all these kinds, and the other is the academic part.
Now, as long as the academic world continues, there is always a demand for academic textbooks, reference books, and these will continue to thrive. So publishers who are related to these particular disciplines and publish books, popular textbooks on various disciplines, whether in India or abroad, they are making a marginal profit, and in some cases, some publishers making outstandingly huge profits. Publishers like Cluer, Sage, or all others, what do you call this, Elsevier, all these, big giant multinational publishers who are controlling the international book publishing industry, particularly with respect to academic books, they have a huge international profit, not because their books are being sold individually, but they do subscription sale to libraries, and the libraries need to accommodate these kind of new books that are coming on, particularly in academic area. So they have a constant market. But the challenge, the part is that there was a time when none of these authors who work for these companies who make billions of dollars a turnout used to get any financial return. But now they provide a set of money to the people who are contributing as editors, associate editors, particularly only not in the case of journals, but in the case of academic books. And it's, in French, we call it comme si comme ça, which is like, okay, halfway through, it's not a great money, but it's still not a bad money, particularly since they pay in dollars, particularly contributors who are contributing from developing countries. It's not that bad an amount, but for Western countries, an hefty an amount of around 1,000 to 1,500 US dollars or 2,000 US dollars is not that a huge big money in that particular sense that they usually pay. But this is academic book, and because these are quality publishers, and not only this, other quality publishers around the world who are like those that have big brand names, those who have registered good sales, there is a royalty return for the people who are working for them. But unfortunately, a vast section of the publishing industry are mostly small publishers or predatory publishers or self-publishers who publish books by the authors themselves. Say, for example, I'm a scientist. I have walked through the books and stuff like your UGC, particularly in case of humanities, social science discipline, wants them to publish books with ISBN. And you will see that the professors are coming up and popping up with a lot of publishing or a lot of books that are coming out. Not necessarily these are coming out from very outstanding publisher. What happens is this: the author usually have a grant from many of these research that they have applied, and once they have completed their work, that the PhD students that have walked through this program, they usually go and compile their work and publish it as a book, and they have to actually pay the money for the cost of production. There is no financial return back to the professors or the student who have contributed to this, because the publisher is taking part and eating and swallowing all that money, that whatever little sale that they will make. The only part that you have is you can add that you have published a book with an ISBN registration in your CV. And it's a good for the professor, good for the new students who have completed their degree and are aspiring for looking for to start their career. So most of them is like the publishing agencies or the funding agencies have provided you a fund and you have published it on the part of your academic pursuit, or you have even published from your own salary money. You have cut your stomach and you have paid the money to publish a book because you need these kind of publications to show to UGC or AICTE or other monitoring organization to show that you are published. But whether that publishing material has a high quality or whether that worth something is a different issue. But at the same time, they do not really have any market, in the sense that you produce 100 copies of that book, that 100 copies of the book you distribute to some of the libraries, to some of your friends, to the vice chancellor, to UGC, different departments that you are applying, maybe for the next grant. But whether it is actually reading the researchers, whether it is actually reaching the general readers is a different question. So this is one story where there is no profit, no gain, but you still need to publish academically. This is one story. And the third one is where some of the distinguished name in any kind of literature, whether it's Bengali literature, English literature, or any other languages that is recognized in India, who publish a book,
And if you are a recognized name and you are published from a big publisher, your publication goes down. Like there is a sale for that because your name carries a lot of weight. So there is people who are going and buying your books. The libraries are acquiring some of the volumes. There is kind of a forced sale. They have good distribution agents and stuff. And so they are being circulated a little better and they're reaching various libraries and stuff. And also the government sometimes procure some of these books for various purposes in various of district libraries and stuff. And as a whole, like you make a kind of a profit. And if you are only from the good companies, or if you are only from like a distinguished publisher, there is the place that you only get some royalties. And some of these people who are distinguished, well-named, and these are not scientists, I'm talking about literary persons or people from the discipline of humanities, social sciences who are publishing stuff on related areas, they have a bit of a market and they are getting a return. And if you are a big name, if you are published from a comparatively bigger company, you expect to get some royalties. But for others, if you go and investigate, you will find the vast number of academic professors or a vast number of researchers, the many books that they are producing. Usually their royalty is very, very low. It's 5% as far as I mean, dealt with. I have around close to 40 books published by this time. And most of the effort is mostly academic. There is very little financial return for people to be to invest serious time in this. So one of the things that the publisher will tell you, you never will get to know how much of your books are being sold in the market. So at the end of the financial year, a publisher comes to you and say, oh, sir, 10 of your books have been sold. And so you are getting such 5% of the 10% sell and with tax and blah, 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 blah. This is the amount that you have received. It could be that maybe 60 copies of your book have been sold and the publisher is just lying. And this is all the medium range and the low range publishers that happens. So what happens is that the incentive for producing quality academic work, whether you are looking for return, any financial return, or looking for a career out of this, is very, very difficult. And it is not only difficult in India, it is difficult outside too, because most secondary, tertiary, and the B-grade publishers will cheat you. This is one of the saga that the authors have to suffer. Not just the big writers or the big, like Mukul Raj Anand will have no problem, but other or Ruskin Bond should have no problem. They are well distinguished authors who have worked for many years. They have a name. If you cheat them, you will get into the court. But for other aspiring new authors that are coming out in the market, this is a very long, difficult, perilous journey for them. And many usually leave halfway through this process is because in spite of having the talent, the books are not marketed well. And even whatever is sold, you are not getting a royalty back from there. This is a story of international publication cheating that is happening all over the world. India is not this only part. If, say, for example, Bengali is a common language both in the state of West Bengal and in Bangladesh. If you ever if you know Bengali and if you get a chance to visit Bangladesh, you will see most contemporary authors of Bengal who make a big royalty in West Bengal by selling their books. They have their books in Bangladesh being sold by, innumerable different unknown publishers, and not a single penny is paid to the author. And this is happening. They're making money. Say, for example, many of you have traveled in the trains, or many of you have, stopped at the, traffic signals, and you will see a poor guy holding about 10, 15 books of different distinguished national or international authors and stuff. And then they're selling those books at the window and you are buying them at an unprecedented low price, 100 rupees, 150, 250, 350, that particular book that sells for 1500 rupees possibly. Now, what is happening? This is also a predatory publisher. They will buy a book, they will copy that book and in the printer, and then they have fictitious address and stuff. You will never be able to link or connect them who is publishing the book. And then you have these distributors who are selling these books across in the train and other places at a cheaper rate. So a 1500 rupees book or 2000 rupees book, voluminous stuff, is being sold, and sometimes you will find that they do not even have all the chapters. If you buy the book for 100 rupees and you go home and you see that the original book had 30 chapters and you have bought a book that has only 20 chapters, and maybe the last chapter has been included as a 21st. So you are being cheated on buying these books at the traffic signal.
Sometimes you may get the entire volume at this low and cheap price. So copyright issues, in a sense, are in a very, very detrimental situation and condition around in the developing countries. The situation is very strict in the Western countries, is because the copyright laws are so strong, and if you are taken to the court and if you have cheated or plagiarized or used the material of a different publisher and stuff, you are in deep trouble, because the court will order such a huge compensation that you have to pay that you may turn bankrupt. So leading publishers and stuff will not go into this direction. But there are smaller publishers, even in the Western countries, medium range publishers and stuff, that do this kind of a cheating production that's happening. Another kind of publication, predatory publication, particularly in case of academic books that have come up and is operating from many European Union countries, is, say, for example, you have completed your master's or a PhD thesis. So these companies get a list of the names of who have completed their degree. So your degree, you have got as a part of your dissertation, you have submitted your dissertation. So what they want to do is simply they will send you a letter saying that we want to publish your book and we want your permission. And once this book is published, you may or may not get a one copy. And if you get a copy, we will provide you with the royalty and blah, blah, blah. All that happens is these are predatory companies. They will take your copyright, which you have to legally transfer to them. And once they have this copyright, they will make a few copies of the book. And like they will tell you that they are making 100 copies or something like that. But previously, they used to provide the author at least with one copy. Now, these kind of publishers, even from Germany, England, and other countries that are operating, do not even provide you a single copy of the book, and they will ask for money. They will ask you that if you pay this amount, we will be able to send you via post or electronically, whatever. And what happens is, say, you locate that, and they are all advertised on Amazon and other premier book sites. So once an individual, say this book has been published by a researcher from India and is published from Germany, and say someone in the United States find that topic to be particularly interesting for his or her research, she wants to buy a copy for her project, then this company, they will contact this company and they will publish this one single individual book. They have the printing system to do individual copy making, and they will send it and they will make a profit out of that. And at the end of the year, they will send you a request that you are like a fictitious note, the 2 copies of your book has been sold, and you need to send this 25 documents to procure your royalty. It is impossible for a country like India to provide all these westernized style documents, which most of the time you haven't even heard of what they mean. And sometimes they will send you in different languages that you do not even understand, like in German or Hungarian or Russian or French or Spanish or Portuguese. So that whole thing is forfeited. So this is how the publishing world is operating right now. So there is hope and light on one side, and there is real darkness on the other side. And because people are slowly moving away from the hard copy version more and more into the electronic versions, and you will see that there are many international trade fairs, many book fairs, and hundreds and thousands crores of books being sold. The important question to ask is, other than these, if these are not textbooks, then how many of these books are being read by the people who are buying it? Or whether they are just being put on the shelves just to show and demonstrate that you have bought the books and you are like, you have an academic pursuit, or you are a lover of book. The real lover of book in this particular point of time is in a bit of a big challenge to say that we are not really getting good readers, because the readership has changed and the pandemic has also transformed the reading habits of the people. Many of us do not go into hard copy newspapers anymore because everything is available on the internet. There are so many television channels that you really do not need to look into the newspaper that the next particular day. So down the line, as the newspapers are getting fader and fader and fader in their hard copy versions, similar is the case of books. But the book, because of there is a need for a huge academic pursuit, the book is not going to perish tomorrow, but the industry is not going to do very good. So there is one section that is making huge profit, unprecedented huge amount of money, and on the other section, those who are underprivileged
publishers, small publishers, they do not have enough distributors to circulate their books along the various circles. So they are not making, or they're making minimal profits. And the authors, whether you are an academic writer or a non-academic or a fiction writer, all you are facing, if you are not a very recognized one, or you are new to start in the process, or you do not have a godfather or godmother in the line, then actually you are not really making a good amount of money. And unless there is an incentive in some way to stimulate the authors, if the author cannot make a minimal amount of money after the extent of hard work that they have to put in these voluminous books, whether they're academic or they're non-academic, you would see that the quality of the books will differentially over the year slowly go down and down and down. It may not happen for major publishers, but it is going to happen for the medium and the small range publishers, because many has closed their windows, many has closed their doors because they are not making enough profit to run the system. And on the other hand, even if they're making profit, the profit is being cuttled and cheated in a way that the benefits are not reaching the authors. So I think there is a big domain in this particular area. Particularly copyright is a very fuzzy issue in India. Like, there is this copyright laws, and this applies only for big publishing houses, and this applies mostly for the big names and stuff. But down the line, the copyright of books is being violated very, very, very much. There is whether there is actually a copyright where you can take an individual to the court, unless you are a big shot, is difficult. And as the judiciary is so slow and is so overloaded with so many court cases, that simple petty copyright issues court cases are not going to show up, because it is another wastage of money before you really get a meaningful judgment, and it will take a long year to resolve this. The amount of money you will pay on your lawyers and court proceedings and papers, it is better not to venture or challenge a publisher, or a publisher will not be able to challenge an author, particularly on this. So this is becoming into a big, big challenge for the book industry. So on this very book day, I really do not have a very, warm picture of the book industry around the world. Sorry, but these are very hardcore truths that are impacting authors, that are impacting publishers, that we all need to know. Like, if there are hundreds and thousands of people to say nice things, but I think it is important to also know and open the windows of the dark side of a particular industry as they are going down with time. As I mentioned, this is not happening for everyone. The giant publishers are becoming gigantic, but the smaller publishers are getting squashed and they're vanishing. And unless we have new authors being inspired to come into the domain, literally, scientifically, academically, as well as non-academically, I think we are limiting ourselves. The publication opportunity has extensively increased because there is huge platforms for self-publication, self-registration these days on online platforms. Various publishers will help you at a very minimal rate to publish your book with ISBN or ISSN registration. But at the same time, the quality of the materials is also getting downgraded because of this easy sourcing. So this is all I have to say. Thank you once again for the opportunity. It's been a pleasure to share my ideas and my observations with you. Thank you. Thank you, Dr. Sadhu. Thank you very much, really. I am really grateful to you, your attitude, your speech, your knowledge. Means without seeing anything, you are the Wikipedia of science, I hope. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sharma, for those warm words. I really appreciate it. Yeah. Thank you. Thank you. So now I would like to request our guardian, Dr. Professor Ved Parul Joshi ji. Madam Parul Joshi. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैडम. वेलकम. वेलकम. साईं कुमार जी ने तो इतना बढ़िया बताया है और सभी टॉपिक्स उन्होंने कवर कर लिए, और मेरा खुद का ये अनुभव रहा. मेरे तो काफी, यानी मैंने करीब 8 पब्लिशर्स से मेरी अलग अलग बुक्स पब्लिश करवाए. अंत में जाके मैंने ये तय किया कि खुद ही पब्लिश करो और खुद ही मार्केट करो. लेकिन उसमें भी दिक्कत आती है, हमको अमेज़न पे जाना पड़ता है, और उसमें भी जो बताए कि इतने कागज जो है वो अपने पास चाहिए, तब जाके अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो है आपका प्रोडक्ट लेता है. एक ये बात थी. दूसरी ये बात थी, आज वर्ल्ड बुक डे है और
आज व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आए, सभी मैसेज एक ही दिशा में पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई बुक्स जो है उसको पढ़िए, दे आर मेंस बेस्ट फ्रेंड्स। उसको जो एकेडमिशियंस है वो एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग कर रखे ताकि अपने स्टूडेंट्स को वो बात बता सके। लेकिन इसमें सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दो चीजें आती है, और एक नेगेटिव साइड तो है ही, लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये है कि सॉफ्ट कॉपी में बुक्स अब सर्कुलेट होने लगी है, तो काफी सारी ऐसी बुक्स है जो उपलब्ध नहीं है। उन बुक्स को जो है वो ये सॉफ्ट कॉपीज के जरिए हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बुक्स, यानी मैं आपको बताऊं कि करीब 6 महीने में मेरे पास 250 से ज्यादा बुक्स आ गई, जो बुक्स प्राप्त ही नहीं है, किसी एक या दो व्यक्ति के पास होगी और वहां से जो है हम तक पहुंची है। तो ये सॉफ्ट कॉपी यानी जो सोशल मीडिया है उसके जरिए एक पॉजिटिव आ रहा है। ये बात सही है कि बुक्स जो है हमारे यहाँ पे पद्मश्री विष्णु भाई पंड्या साहब है, तो वे बोलते थे कि बुक्स जो है खरीदते हैं और सिटिंग रूम में रखते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारे पास ये बुक्स है। जिस तरह हम डेकोरेशन के लिए कुछ आर्टिस्टिक चीजें रखते हैं वैसे ये बुक्स रखी जाती है। उसके बदले अगर वो बुक्स उठा के थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए या सिर्फ देखा भी जाए तो भी बच्चों में हम काफी सारे चेंजेस ला सकते हैं। मेरा आज जो है वो पॉइंट ये था कि बातें तो कॉपीराइट की काफी सारी होगी, लेकिन हम किसी एक बुक के ऊपर अगर कुछ अध्ययन करें और वो बुक के बारे में हम लोगों को बताए कि भी ऐसे भी बुक्स है जिन्होंने इतना बढ़िया बढ़िया लिख रखा है, और वो जो है वो आज के समय में आज के विज्ञान के मुकाबले बढ़िया है, और अगर आज का विज्ञान उनको अपने साथ रखे तो हम मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसी एक बुक कात्यायन बालतंत्र है। ये बालतंत्र की बुक्स जो हमें मिल रही है वो इस तरह की है। ये शिवनाथ खन्ना साहब की है, ये महर्षि कात्यायन है और ये उनकी बुक है, ये उनकी जो है स्क्रिप्ट है। कौमार वृत्य जो है वो आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक अंग है, और हम जानते हैं कि वहां पे फ्रॉम शुक्र शोणित शुद्धि टू बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड बर्थ, बच्चा जो जन्मा है वो बच्चा स्वस्थ ही बड़ा हो और यौवन प्राप्त करे, तब तक का पूरा जो वर्णन है वो कौमार वृत्य विभाग में आता है। महर्षि कात्यायन के बारे में कुछ अलग अलग बातें बताई गई हैं। कश्यप के बारे में भी जिस तरह किंवदंतियां हैं वैसे ही कल्याण जो है महर्षि कल्याण, उनके बारे में भी किंवदंतियां हैं, और कोई ऑथेंटिक मिली नहीं, इसके लिए उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। अभी महर्षि की जो संहिता है वो 14 पटल में डिवाइडेड है। तो कल्याण वैद्य जी जो है रामदास वैद्य के ग्रैंडसन और महेंद्र वैद्य के बेटे हैं। संवत 1644 में पूर्णिमा के दिन शिवालय नाम की जगह पे उनका जन्म हुआ, और ये उनका जो पहला पटल है, पटल यानी चैप्टर, उसका नाम है षोडश बंध्या प्रातिकार कथन। उसके अंदर उन्होंने जो है वो काफी सारी बातें बताई है, जैसे कि स्टेरिलिटी डिफेक्ट ऑफ विमेन, उसमें रक्त पित्त वात कफ त्रिदोष ग्रह दोष देव प्रकोप अभिचार या शाप जनक प्रजनन अक्षमता की बात करी है। तो ये जो बात है षोडश बंध्या प्रतिकार कथन उसके अंदर, तो ये इसमें ग्रह देव अभिचार की बात महर्षि कश्यप ने भी की है।
काकवंद्या मृतवत्सा गर्भस्रावी देव प्रकोपच कृत्याकृत वंद्या, ये प्रकार की वंद्या जो है वो हमें मिलती है, चरक सुश्रुत में भी मिलती है और हरित में भी मिलती है। फिर 8 प्रकार के वंद्या षटक जो है उसमें त्रिपक्षी वंद्या, शुभ्राति वंद्या, सज्जा, त्रिमुखी, व्याघ्रिणी, पकी, कमलिनी, व्यक्तिनी, ये वंद्या के प्रकार जो है हमें कहीं और मिलते नहीं है। आर्तव दृष्टि की भी बात की है और वंद्या जो है उसकी औषध के बारे में उन्होंने करीब करीब 20 योग दिए हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है पूजा, दान और व्रत करने के। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए 4 योग की बातें संवत 1644 में की गई है, ये एक नई बात है। सप्तम चैप्टर जो है दीन ग्रह ग्रहित बाल रक्षा कथन में, यहाँ पे एक और बुक जो मुझे बहुत प्रिय है वो है रावणकृत बाल तंत्र, इसके साथ ये मिलने में है। और यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट डे ऑफ लाइफ नंदिनी मातृका, सेकंड डे सुनंदा, थर्ड डे गंताली, फोर्थ डे कटोकी, ये जो है इस तरह के ग्रह जो डे पे ग्रस्त करते हैं, रावण कहते हैं कि जिस दिन जो ग्रस्त करता है वही उसी मंथ में, यानी फर्स्ट डे है तो फर्स्ट मंथ और फर्स्ट ईयर ऐसे ग्रस्त करते हैं। वही बात यहाँ पे भी कही गई है। धूपन बलि, इसका ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। और स्नान दान, यहाँ पे स्नान से क्या लेना है, तो सर्वगंधोदक स्नान तो है ही है, उसके अलावा जो है हर ग्रह का अपना अपना द्रव्य है, उससे स्नान करना है। तो जब हम लोग अखंड आनंद में थे तो वीएन लाठिया साहब करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएट काय चिकित्सा थे, वे कुष्ठ रोग में बताते थे कि खान पान आहार में और स्नान में, उसमें चारों जगह हम अगर खदीर का प्रयोग करते हैं तो कोई भी स्किन डिजीज टिकेगा नहीं। वैसा ही यहाँ पे ग्रह बाधा में बताया गया है, लेकिन इसमें धूपन एक एडिशन है। फिर जो है ये अष्टम चैप्टर जो है उसमें मास ग्रहित बाल रक्षा, उसकी रक्षा कैसे करनी है। तो आप देखिए बलि विधान मंत्र, बलि धूपन, तो ये जो है असाध्यता फोर्थ मंथ में पिंगला योगिनी जो है, ये बात तो महर्षि कश्यप ने भी बताई है, महर्षि सुश्रुत ने भी बताई है कि जो स्त्री गर्भ जब बालक को ग्रस्त करते हैं तो वे प्रायः कष्ट साध्य या असाध्य होते हैं। तो ये एक बात सुश्रुत ने भी बताई थी कि अक्षि दोष, दृष्टि दोष, तो ये जो दृष्टि दोष को हम लोग जो नजर बोलते हैं, तो बच्चा जब जन्मता है तो प्रायः हम अपने सभी घरों में देखते हैं कि किसी भी, यानी सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू के अलावा भी जो लोग धर्म प्रैक्टिस करते हैं वे सभी जो है किसी न किसी प्रकार का नजरिया, तावीज बोलो नजरिया बोलो, बच्चे को लगाते ही हैं। और लगाने की जगह कौन सी, गला है, कमर है, पैर में है और हाथ में है। तो ये जगह जो है वो हम जाने तो मर्म है, और वो मर्म के ऊपर ये बंधन बांधने से जो दृष्टि दोष है उससे एक रक्षा कवच बनता है, बच्चे को नजर नहीं लगती है। यहाँ पे हम जाते हैं 9th चैप्टर में, वर्ष गृहित बाल रक्षा कथन। कौन से वर्ष में ग्रह का लगा और उसमें मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। मेरे लिए जो है बिफोर कंसेप्शन से लेके बच्चा जो है 7th ईयर में आता है तब तक का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा तो रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, यत ऊर्ध्वम रजस्वला। अब 10वें वर्ष में अगर उसको मासिक नहीं आता है तो 11वें वर्ष यानी 11वें वर्ष में मासिक आना जरूरी है। अगर इसके बीच में कहीं पे भी उसको ग्रह जुष्ट होती है तो
एक महर्षि चरक का भी सूत्र है कि अगर वो ग्रह जुष्ट होती है तो वो आगे चल के वंध्या होगी, यानी उसको नष्ट पुष्पा, उसका ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, या पुष्प से अगर हम बहिर्पुष्प लेते हैं तो उसको मासिक ही शुरू नहीं होगा। तो ये बातें यहाँ पे भी बताई है और रावण ने भी बताई है। तो ये अष्टम नवम दसम मास जो है, वर्ष जो है, वो हर बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मेल बच्चा जो है उसकी मैच्योरिटी लेट होती है, तो उसको हम 12th ईयर से लेंगे। तो 12 to 16 जो है मेल बच्चे में डेवलपमेंट अगर नहीं होता है तो माता पिता को तुरंत ही सावधान होके उसका बलि होम जो भी है वो करवा देना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी बच्चा ग्रह जुष्ट हुआ है तो उसका पहला लक्षण है वो रोता है। रोता नहीं है सिर्फ, वो क्रंदन करता है, यानी वो टिपिकल क्राई आती है, जैसे कि मेनिंजाइटिस में बोलते हैं क्राई डू चार्ट, तो उसी तरह का वो टिपिकल आवाज निकाल के रोएगा। और इसमें बताया भी गया है कि जो ग्रह जुष्ट करेगा उसके मुताबिक गंध जो है बच्चे में से आएगी। तो पूतना ग्रह, ग्रुप ऑफ ग्रहस जो है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि बच्चे में से वो जल प्रदेश के पक्षी जो है उसके मुताबिक गंध आती है। तो तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए कि ये बच्चा पूतना ग्रह ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ग्रहस है। यहाँ पे भी लिखा है 16 टाइप ऑफ पुतनास। हम जो है वो प्रायः 8 टाइप ऑफ पुतनास या 3 टाइप्स ऑफ पुतनास ऐसा सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे 16 टाइप्स ऑफ पुतना बताई गई है। और ये जो बताया है कि जल प्रदेश के उसमें भी स्वच्छ पानी। जी 1-2 मिनट चाहिए सब, आई एम जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग। जो स्वच्छ जल का पक्षी है, समुद्र का है, नदी का है, तालाब का है, उसके मुताबिक उसके गंध में विविधता आती है। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। चैप्टर 11 में जो है पाटला, साधारण बालग्रह, उसके रोग जो है उसको किस तरह हमें देखना चाहिए। तो उसकी पहली जो टर्म्स एंड कंडीशन है, माता अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव पूर्ण होनी चाहिए। माता अगर ताड़ना त्रसन करती है तो उसको ग्रह भी जुष्ट करते हैं, रोग भी जुष्ट करते हैं। तो ये उसका सार है कि उसमें आचार्य has mentioned all treatment, लेकिन उन्होंने some diseases occurring in children have been given, all are not mentioned. Some yogas have been talked of, और ज्यादा जो है सैक्रिफिशियल डीड्स जब बताई गई है कि भाई हम उसका बलिदान दे, वो अब पॉसिबल नहीं है, तो उसके बदले क्या कर सकते हैं, तो आटा जो है उसका पुतला बना के उसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो बताया है कि जो ग्रह है, पुतना ग्रह है, उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा करना, वो आज भी गांव में प्रैक्टिस होती है। तो ये जैसे कि शीतला में बताया है कि शीतला माता करके, तो वो कुछ ध्यान में रख के उसके ऊपर कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत महसूस होती है। तो ये जो है इतना पूरा नेट सर्च करने पर सिर्फ एक रिव्यू आर्टिकल मिला है, उसके अलावा इसके बारे में कुछ बातें हो नहीं रही है। तो जिस तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सॉफ्ट कॉपीज में ही सही, लेकिन पुस्तक मिल रही है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं, वे उसकी हार्ड कॉपी निकाल के उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिनको आगे नहीं बढ़ता है वे वैसे भी नहीं बढ़ते हैं। सो ए हैप्पी वर्ल्ड बुक डे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। अब मैं डॉक्टर नितिन उर्मलिया जी को आग्रह करता हूं, उनकी 90-95 बुक्स हैं, उन्होंने निश्चय एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़े हैं। डॉक्टर नितिन उर्मलिया जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद सर। नमस्कार जी। जी सर, तो सर ये जितने भी पहलू थे और वर्ल्ड बुक डे था, एक्चुअली इससे मैं काफी फैमिलियर हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है थोड़ा सा बुक को लिखना।
तो सर इसका मैं बताना चाहूंगा, इसकी प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग आजकल। ISBN के लिए सबसे पहले कवर पेज बनवाते हैं, और कवर पेज बनवा के ISBN के लिए अप्लाई करते हैं हम। ISBN नंबर आ जाता है, दिल्ली में रजिस्टर्ड हो गए, वो ऑथर रजिस्टर्ड हो गए, बुक का टाइटल रजिस्टर्ड हो गया, सब रजिस्टर्ड हो गया। देन उसके बाद हम इंटीरियर वर्क स्टार्ट करते हैं, कवर पेज का पिछला हिस्सा बनाते हैं। फिर उसके बाद इंटीरियर जो मैटर रहता है, प्लेजियरिज्म में तो नहीं है, कहीं किसी का कॉपी पेस्ट तो नहीं है, वो आजकल सॉफ्टवेयर से पकड़ लिया जाता है, तो उससे हम चेक कराते हैं। और उसके बाद हम बुक को बनाने का प्रयास करते हैं। फिर वो उस बुक को प्रूफिंग के लिए आती है, बुक वो पूरी सेटिंग हो जाती है, बुक के रूप में प्रूफिंग के लिए आती है। बहुत टाइम लगता है सर प्रूफिंग के लिए, एक एक वर्ड को देखना, एक एक लाइन को चेक करना, कॉमा, अंडरलाइन, कहीं ये फॉन्ट छोटा है कहीं बड़ा है, इसमें बहुत टाइम लगता है सर। मतलब कम से कम 2-3 महीने भी लग जाते हैं कई बार। और उसके बाद फिर सर उसमें हम प्रूफिंग कर देते हैं, तब फिर वो फाइनल करता है जो जो आपके करेक्शंस थे, और करेक्शंस करने के बाद और फिर वो आपको फिर भेजेगा, देख लीजिए सब सही है कि नहीं। हम ओके करेंगे, जब तक ओके नहीं करेंगे तब तक वो प्रिंट नहीं कर सकता, ये खास बात रहती है। और मेरे चौखंबा वगैरह ये 3 भाई हैं, ये लोग, ये बनारस में है एक दिल्ली में 2 हैं। इन सब से मेरा काफी अच्छा रिलेशन है। और ये लोग थोड़ा सा कि सर स्टैंडर्ड हैं आयुर्वेद के मामले में, इनके बराबर बुक नहीं है कहीं पे भी। जैसे मैडम ने बाल ग्रह की अभी बात की, बाल ग्रह के ऊपर ही पता नहीं भृगु संहिता और क्या क्या ढेरों बुक अभी मिल जाएंगी अगर हम उसमें ढूंढना चाहेंगे तो, और उसका निराकरण भी मिल जाएगा। तो भृगु संहिता में बहुत सारा वर्णन है इसका, और बहुत सारी संहिताओं में प्रेमवती मैडम की भी है बुक, और भी बहुत सारी बुक्स हैं उसमें भी है। तो इनके पास एक स्टैंडर्ड है ये पब्लिकेशन, तो ये लोग अपना मेंटेन रखते हैं। ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, जल्दबाजी में नहीं छापते। इनके यहाँ कम से कम एक बुक छापने में 5-6 महीने लग जाते हैं। तो मैडम ने जैसा कहा कि आजकल ऐसा लगता है कि हम खुद ही छाप लें, मैं वही ही करता हूँ। मैं जो छोटे छोटे पब्लिकेशंस रहते हैं मैं इनसे काम कराता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से चलना है। ये करेक्शन करो, कवर पेज को ऐसे बनाओ, उसको ऐसे करो, इसको ISBN के लिए भेजो, इसको ऐसा करो। ये मैं इन लोग से अप्रोच नहीं कर पाता, चकम्बा वगैरह से। उनसे मैं बोलता हूँ तो हूँ, पर वो लोग बोलते हैं ठीक है डॉक्टर साहब देखते हैं, ऐसा करके थोड़ा सा कर देते हैं। और बाकी स्टैंडर्ड है, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो मैं इन छोटे छोटे पब्लिकेशन को पकड़ा हुआ हूँ मैं, इनमें बहुत अच्छा वर्क करते हैं ये लोग, और पूरा का ऑन द प्रोसेस सब कुछ रहता है। और मैडम ने कहा कि कुछ पेपर लगा के अमेजोन और फ्लिपकार्ट में एडवर्टाइजमेंट रहता है। बिल्कुल आज की डेट में ये कंपलसरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है कि आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ही डालना है। आजकल हर युवा, चाहे कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, सबके हाथ में मोबाइल रहता है, और मोबाइल में आजकल लोग ढूंढते हैं सब कुछ। तो मोबाइल से ढूंढने पर अमेजोन फ्लिपकार्ट ही हेल्प करता है। और आजकल एक खास बात बुक की हो गई है, बुक 2 फॉर्म में आती है, आप चाहें या ना चाहें। मैं जैसे नहीं भी चाहता हूं तो भी वो करना पड़ता है मुझे। ई बुक बनती है और उसके बाद हार्ड कॉपी बनती है, जो आप फिजिकली किसी को दे सकते हो, बता सकते हो, वो भी बनती है। उसके पहले ई बुक बन जाती है बुक, तो ई बुक की भी परमिशन रहती है ऑटोमेटिक। तो ई बुक आजकल जो भी पढ़ना चाहे नेट से कहीं बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है, और उसको आप खरीदना चाहें, लेना चाहें बहुत नॉमिनल रेट में, तो आप ई बुक का पैकेज भी चलता है, तो 200-300 रुपए में आपको कम से कम 50 बुक मिल जाएगी। ऐसा भी मैंने देखा है एडवर्टाइजमेंट फेसबुक में। तो ई बुक बहुत अच्छा सहारा हो गई है। जो लोग टैबलेट वगैरह अगर बड़ा स्क्रीन यूज करते हैं, मोबाइल से तो पॉसिबल नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि बहुत छोटे अक्षर रहते हैं, इतने से पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर लोग पढ़ते होंगे शायद। लेकिन टैबलेट वगैरह जो लोग मेंटेन करते हैं उनके लिए ई बुक बहुत अच्छी है, वो ई बुक को ही सहारा लें, और ई बुक से हर बुक को रेफर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इसमें बाकी मैं थोड़ा कॉपीराइट के बारे में बोलना चाहूंगा। हर पब्लिकेशन आपका ऑथर के साथ कॉपीराइट को भी एक जस्टिफाई करता है कि आपका कॉपीराइट रहेगा, आपका कोई मैटर कोई कहीं कुछ नहीं लेगा। तो हम जितनी प्रति छापना चाहें, लेकिन थोड़ा इसमें भी वो भी है कि वो पब्लिकेशन अपने प्रॉफिट के लिए जितने ऑर्डर आते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से, वो हमसे कई बार नहीं बताते हैं और वो लोग बेच लेते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। सिर्फ कॉपीराइट का मैं यही बोलूंगा कि कोई दूसरा बुक वाला नहीं ले, और उसके बराबर हम कोई ले रहा है रेफरेंस डाल रहा है तो भी चल जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सारी कभी बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मेल में चेक करता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स, जनरल में आर्टिकल्स जो आते हैं उसमें मेरी बुक के रेफरेंसेस हैं, मेरी बुक का मैटर भी है इवन, लेकिन वो लोग रेफरेंस डाले हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं मुझे। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कॉपीराइट में,
क्योंकि उन्होंने एक बहुत छोटा सा अंश लिया और बाकायदे मेरा रेफरेंस डाला है कि हमने डॉक्टर नितिन उर्मलिया जी की बुक से हमने ये लिया है ऐसा करके। तो मुझे तो बल्कि खुशी ही मिलती है कि उसमें कॉपी तो नहीं किया, मतलब हमारा मैटर है, हमारा कॉन्सेप्ट को लिया उन्होंने। और कई लोग थीसिस और साइनॉप्सिस बनाते हैं, उसमें मेरा रेफरेंस बहुत जगह मिलता है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मेरी 4 टेक्स्ट बुक हैं जनरली, तो उसमें से अगत तंत्र भी है, व्यवहार आयुर्वेद भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सभी हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोग ऑल इंडिया में यूज करते रहते हैं, तो मुझे फोन भी आता है, मुझे डिमांड भी करते हैं वो लोग मुझसे। तो बुक के मामले में तो मैं यही बोलना चाहूंगा, लेकिन ये बहुत मेरा पैशन है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली पर डे 2-3 घंटे इसको देता हूँ, चाहे मैं रात लेट नाइट जगता रहूं, 12-1 बजे तक जगता हूँ, लेकिन मैं लिखता जरूर हूँ, पर डे लिखता हूँ मैं। ऐसा कोई दिन नहीं आता कि जब मैं लिखता नहीं हूँ, तो वो मेरा पैशन है। लेकिन वैसे कहना चाहिए कि थोड़ा सा बोरिंग काम है। आपको एक किताब अगर आप लिखने बैठेंगे, मिनिमम 6 महीने लगेंगे, और आपको बिल्कुल दिमाग से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब जाके आपकी बुक पब्लिश होना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। उसकी प्रूफिंग करना और बोरिंग काम है, उसका कॉमा है कि नहीं है, ये लाइन है कि नहीं है, वो वर्ड गलत लिखा है, एस ज्यादा हो गया है, ये कम हो गया है, आप उसको भी करते करते बिल्कुल बोर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो हैंड राइटिंग से पहले लिखें, हैंड राइटिंग के लिखने के बाद जस्टिफाई करें कि सही लिखा है कि नहीं। और अगर टेक्स्ट बुक लिखते हैं तो सिलेबस को सबसे पहले आगे सामने रख लें। सिलेबस के एक एक पॉइंट को आपको लेकर हर चैप्टर को बनाना है, एक ही पॉइंट नहीं मिस होना चाहिए कायदे से। आइडियल बुक टेक्स्ट बुक तो वही होती है। अब आप छोड़ दें तो अलग बात है, अभी तो सिलेबस बदल गया है, अभी नया सिलेबस आ गया है, तो एनसीआईएसएम के नए सिलेबस के हिसाब से बुक्स बनने लग गई हैं शुरू। तो अभी इस तरह भी प्रचलन में आया है बहुत सारे। अब ऑथर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है इस समय, क्योंकि वो नए, मैंने अभी संहिता का एग्जाम्पल देता हूँ। संहिता के लिए पहले कभी नहीं था, सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान का 4था चैप्टर, ओनली 4था चैप्टर का उन्होंने एक विवेचना डाली है कि ये होना चाहिए। और उन्होंने संहिता अध्ययन के लिए बनाया है सुश्रुत संहिता, चरक संहिता के 12 चैप्टर और अष्टांग हृदय के 15 सूत्र स्थान के चैप्टर, ये 27 चैप्टर संहिता अध्ययन में आएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने नए नए प्रारूप बनाए हैं, बड़े अच्छे हैं। तो अब ऑथर्स जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो इस समय बिल्कुल वो लग सकते हैं, क्योंकि उनको नया कॉन्सेप्ट, नई चीज और नया। और एक चीज और बताना चाहूंगा सर, इससे नॉलेज बहुत बढ़ता है। आप जो नहीं भी जानते हैं, एक लिंक से पता नहीं कहाँ लिंक मिल जाती है, कहाँ से कौन सा वर्ड मिल जाता है, इतना अथाह नॉलेज हो जाता है, आप उतना समेट नहीं पाओगे इतना। जैसे आयुर्वेद को मैं पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मैंने बीएमएस में, आयुर्वेद शाश्वत है, अनादि है, बिल्कुल करेक्ट वर्ड मैं आज भी बोलता हूँ। वो रियली वो शाश्वत है आयुर्वेद। मैं इतनी बुक लिखने के बाद भी अपने आप को बहुत कम समझता हूँ कि मेरे पास कम चीज आई है, अभी बहुत सारी चीज मुझे और पढ़ना है। तो शाश्वत है, अनादि है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसको आप जितना पढ़ते चले आएंगे तो आप अथर्ववेद तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उसको बस अब जानते रहिए, आप अपने कैलिबर के हिसाब से रेफरेंसेस देखते रहिए। और जैसा कि मैडम ने बताया कि बहुत सारी अद्भुत बुक्स भी हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। कुछ बुक्स आज की डेट में अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उन बुक्स को क्या करना चाहिए, और हमको अगर हमको मिल जाती है तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आजकल व्हाट्सएप वगैरह है। तो व्हाट्सएप में जहां जहां जिन बच्चों को, जिन लोगों को उसकी जरूरत है, वहां हमें जरूर पोस्ट करना चाहिए। बाकी एक फॉर्मेलिटी कई लोग पोस्ट करते हैं अपना रुतबा दिखाने के लिए कि हाँ ये मैंने कर दिया, जस्ट एक वो मतलब नहीं है, ये नॉलेज के लिए होती है एक्चुअली। तो जहां जिस बच्चों को जहां हो वहां तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और ऐसी बहुत सारी दुर्लभ बुक हैं आज की डेट में भी हैं, तो उनको, जैसे चिकित्सा कालिका एक बुक है, अगत तंत्र, बहुत छोटी सी बुक है, उसमें विशेष अनुमान, उस विशेष उपाय बताए गए हैं, समाधान बताया गया है। तो वो जैसे अवेलेबल नहीं है, मुझे अगर मिल जाए तो बच्चों को मुझे देना चाहिए, कम से कम पीजी स्कॉलर्स को, कि एक बुक ये भी है करके, जिसका नाम भी लोग नहीं जानते हैं। हारित तंत्र है, हारित ने विष तंत्र बनाया है, तो विष तंत्र के बारे में भी मुझे लोगों को बताना चाहिए कि अगर तो सुश्रुत ने बताया है, लेकिन विष तंत्र बोला है हारित ने, तो हारित संहिता भी हमारे लिए कितनी फायदेमंद है ये हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से बुक की बातें मैं जितनी भी करूं बहुत कम पड़ेगी, बहुत ज्यादा टॉपिक हैं
और मैडम ने चैप्टर वाइज उसको समझाने का प्रयास किया था। बिल्कुल करेक्ट बात है, हर जगह हमको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं जो कि शायद बहुत दुर्लभ हैं, तो इसके लिए हमको करना चाहिए। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मैंने केरल से एमडी किया, केरल वालों का मैं यहाँ बड़ाई बुराई कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा सिर्फ बता रहा हूं कि केरल वालों का मैंने देखा है कि आयुर्वेद जितना संहितागत है, जितने से हम लोग फैमिलियर हैं नॉर्थ वाले या और भी ईस्ट वाले या जो भी है, उस साउथ वाले उससे एक्स्ट्रा हैं, उससे वो एक्स्ट्रा उनके पास नॉलेज है, उन्होंने खुद की अपनी बुक्स निकाली हैं। तो हमको उनकी बुक्स, जैसे अगत तंत्र के विषय में उनकी खुद की एक बुक है विश्ववैद्य जोशनी का, गजब के उनके फॉर्मुलेशंस हैं और बिल्कुल ड्रास्टिक रिजल्ट्स हैं, चाहे स्नेक हो, चाहे वृश्चिक हो, चाहे लूता हो, सबका उसमें बहुत अच्छा गजब। और गर्विश का तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहां गर्विश के एक्सपर्ट बैठे हैं अगर केरल में। तो हमें उन लिटरेचर को भी अवेलेबल कराना चाहिए। जब मैं पीजी टाइम पे था तो वहां पर हमारे एचओडी डॉक्टर सीएम श्री कृष्णन सर, उन्होंने वहां के विश्ववैद्य जोशनिका को इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोगों से कराया था, और मेरी वो दूसरी बुक थी वो, तो उन्होंने ट्रांसलेट करा के हमको दिया था कि ताकि नॉर्थ के लोग भी पढ़ सकें। और रियली उनके पास अद्भुत मटेरियल है। ये मैंने अगतंत्र की बात की, ऐसे हर सब्जेक्ट में उनके पास बहुत गजब की उनके पास बुक्स है, लिटरेचर, खुद का लिटरेचर है उनका। और एक बोला भी जाता है, आप कभी सुने हो तो, दक्षिणी साउथ का पंचकर्म और नॉर्थ का पंचकर्म ये भी तक अलग है, और मैंने वो देखा, फील किया है। वहां का पंचकर्म बिल्कुल डिफरेंट है और वहां टर्मिनोलॉजी वगैरह बहुत यूज करते हैं। तो हमें इसमें कोई शंका या कुछ हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि अगर उनके पास नॉलेज है या जो भी है तो हम उनको ले लें और उनको स्प्रेड करें, ट्रांसलेट करवाएं लोगों से, और उनका बहुत ज्यादा अध्ययन करें हम। तो इसी के साथ, बोलने को बहुत है मेरे पास, पर मैं समय की मर्यादा को देखते हुए मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा कि बुक का बहुत अच्छा वर्ल्ड बुक डे है, मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है ये आज। और हमें बुक के माध्यम से एक दूसरे को ज्ञान से अनभिज्ञ नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे पास गलती से कहीं कुछ आता है, स्प्रेड करो, तुरंत विद्या बांटने से बढ़ती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकली। अगर हम मैं रख लूं अपने पास और डायरी में नोट करता रहूं या ऐसा कुछ करता रहूं, कुछ नहीं होने वाला उससे, वो सिर्फ मेरे पास रहेगी और खत्म हो जाएगी। लेकिन बांटने से वो 10 लोग बांटेगी, 10 लोग का नॉलेज लेवल बढ़ जाता है, और इसी के साथ हमारा भी यश होता है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सर। बहुत अच्छा नितिन जी, बहुत अच्छा, आशातीत बोले हैं आप, बहुत अच्छा, गजब गजब। मैं आदरणीय वीके अग्निहोत्री जी से आग्रह करता हूँ, अच्छा ये कॉपीराइट अपने नाम नहीं हो सकता? बिल्कुल सर, हो सकता है। ये हम कॉपीराइट सर अपने अपने नाम ले नाम लें, ही फिर होता है। किसी भी पब्लिशर को दे दें? बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। कॉपीराइट आपका ही रहता है, पब्लिशर का कभी नहीं रहता सर। पब्लिशर आपके साथ कुछ डील कर ले तो अलग बात है, जनरली हम कॉपीराइट लेखक का ही रहता है, आप तो कहीं इसमें कुछ नहीं अपन कर डिटेल सकते। बातें करेंगे एक बार। जी जी। थैंक यू आदरणीय रिस्पेक्टेड वीके अग्निहोत्री सर, दोनों ही दिन आज अच्छे सेलिब्रेट हुए, रमजान भी, ईद भी, और ये अभी बुक्स और कॉपीराइट भी। अग्निहोत्री सर शायद ऑडिबल नहीं हूं मैं। आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, आपके पास भी पूरा खजाना है। नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि। जो आज के विषय हैं बहुत अच्छे हैं। संसर्जन क्रम हम जैसे करते हैं वैसे रमजान के बाद में रोजा का जो क्रम है उसमें जो खान पान की स्थिति है वो बिल्कुल वैसी ही है कि सब अग्नि का संरक्षण करते हुए स्वस्थ कैसे रहा जाए, अग्नि संरक्षित रहे, क्योंकि आहार वगैरह नहीं करते तो उनको जीवन में अभ्यास से ये करने से काफी कुछ अंतर आता है। दूसरा, जो बुक्स डे है उसके लिए देखें और सब लुप्त होती बुक की बात हुई तो बहुत सी बार तो क्या होता है कि जैसे उर्मालिया जी के प्रकाशन हैं तो उनकी लिस्ट अलग से कहीं मिलेगी नहीं, वो चौकम्बा की लिस्ट में हो या कुछ हो तो थोड़ा सा लेखक हैं वो अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रकाशन हैं जिनकी ग्रंथ लाइब्रेरी में देखने को मिलते हैं कि तो बाजार में कहाँ मिलेगी, उसके लिए बड़ा मतलब विद्यार्थी को परेशानी होती है।
हम भी स्टूडेंट थे, तो बुक्स देखने के लिए काफी पब्लिशर हैं। चौखंबा तो आयुर्वेद के लिए एक तरह से वो टिप पे आ जाता है, किंतु वो प्रकाशन से हट के, जैसे उदयपुर में हम लोग पढ़े हुए हैं, वहाँ पे सूर्य आयुर्वेद प्रकाशन संस्थान है और आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकें वहाँ से पब्लिश हुई और पब्लिशर लेखक एक ही हैं। उन्होंने ही अपना प्रकाशन खोला और आज से 40 साल पहले की बात कह रहा हूँ मैं आपको। तो ये स्थितियां वैसी है कि सब जितने प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान हैं और जितने भी स्टेट लाइब्रेरीज हैं, वहां भी शोध कार्य के नाम से कुछ आयुर्वेद ग्रंथ प्रकाशित हुए, वो एक तरह से लुप्त ही है, क्योंकि न सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, न किसी पब्लिशर की लिस्ट में वो बुक्स हैं, केवल गवर्नमेंट पब्लिकेशन है और वही जोधपुर में मिलेंगे। तो कुमार तंत्र भी जो रावण वाला है वो जोधपुर से पब्लिश है और वहां पे आपको मूल संस्कृत में पूरा मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आज ऐसे हैं कि संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते, तो वो जो एक बार पब्लिकेशन किया गवर्नमेंट ने, वो भी पूरा बिका नहीं। आज भी वहां से अगर आप बुक खरीदो तो आपको मिल जाएगी और काफी सस्ती मिलेगी, क्योंकि वो 30 साल पहले की पब्लिश है और क्योंकि प्रकाशन कर दिया और हमारा सीआर में लिख दिया और हमने सब इतने ग्रंथ प्रकाशित किए। तो आनंद माला भी एक ग्रंथ है जो आनंद भारती ने लिखा और उसमें आयुर्वेद के बारे में ही व्रतरही लघुत्रयी से ही सभी कुछ आता है फ्लो होके, चाहे कोई भी मौलिक आयुर्वेद का ग्रंथ उठाओ। इसीलिए हम लोग जब व्रतरही लघुत्रयी पढ़ लिए तो फिर मन में होता है कि साहब बार बार इसी चीज को क्यों पढ़ना। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ग्रंथ हैं जो एक तरह से लुप्त रहे और फिर लोगों ने लुप्तागम संग्रह करके कुछ कैटलॉग बनाए और उनमें से आज भी हम कुछ ढूंढ सकते हैं और काफी कुछ लिटरेचर ऐसा रसशास्त्र का तो काफी मिलेगा, क्योंकि मैं रसशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मैं रसशास्त्र के बारे में आपको कुछ बोल सकता हूँ उन स्थितियों में। तो आज का पुस्तक दिवस बहुत अच्छा है, किंतु जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथि ने जो कुछ बोला पब्लिकेशन के अनुभव के आधार पर, उससे मैं सहमत हूँ कि मैंने हमारे साथियों, मेरी तो कोई बुक नहीं है, मैं लेखक भी नहीं हूँ, न मैं अच्छा वक्ता हूँ, किंतु जब देखते हैं बात करते हैं तो जो आज की रेट है, जैसा कहा उर्मालिया जी ने, साहब बहुत मेहनत पड़ती है पब्लिकेशन में, संपादन में, किंतु मिलता क्या है। तो सब या CCRS में गवर्नमेंट जो है अनुवाद करने का 2 रुपए 2.5 रुपए शब्द का देते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। वो फिर उसका मक्सी का स्थान है मक्सी का ही लिखेंगे, अबीरू को अबीरू लिखेंगे, ऐसे अनुवाद वाले ग्रंथ से क्या मतलब है। और कुछ पब्लिश करते हैं तो जो वरुणार्तगल करके है, तो वरुणादिगण में आर्तगल से क्या लेना, ये जब तक तय नहीं हो तो वो किताब पब्लिश होना, हिंदी टीका करना, इंग्लिश करना, सब व्यर्थ है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें श्रम भी करते हैं, किंतु उसमें फिर उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो इस तरह का समझ में अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत किया और मैं अपने भाषा को विराम देता हूँ। धन्यवाद पवन जी। बहुत अच्छा, आपके साथ तो मैं बातें करूंगा। अब रसशास्त्र में आया हूँ तो क्या क्या कर सकते हैं अपन इस विषय में, जरूर मैं बातें करूंगा। स्वागत है। आदरणीय अग्निहोत्री सर। थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी, बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, हम अभी सड़क पर हैं अभी। एक्चुअली आज छोटे साले साहब का मैरिज एनिवर्सरी थी, करीब 37 साल के पहले की बात है, 85 की बात है। तो भोजन इधर ही था, तो हम लोग वहां से आ गए थे ईश्वर वादा जी के घर से। वहाँ कुछ इंस्पेक्शन प्रोग्राम चल रहा था ना, अभी से फाइनल रिपोर्ट बननी थी। खैर, तो आज के 2 वेबिनार्स बहुत ही अच्छी रही। हमारे स्पीकर्स तो अच्छे ही हैं। सच बताया हमारे प्रोफेसर द्विवेदी जी ने कि संसर्जन क्रम से हमें भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि भोजन भी अपना है, शरीर भी अपना है और स्वास्थ्य भी अपना है, और इनमें कहीं पे कुछ व्यतिक्रम होने पर हम और परिवार वाले सभी दुखी होते हैं। तो इसलिए एक तो वो चीज हो गई। दूसरी, उर्मिला जी जब बोल रहे थे तो बुक डे और स्पेशली कॉपीराइट के कम में जो बातें आई, तो एक लग रहा था कि व्यक्ति कितना मजबूत हो जाता है जब 90 किताबें छप गई हो। इतनी अथॉरिटेटिवली उन्होंने इन बातों में इशारा किया कैसे तुम सामान्य बना सकते हैं। बुक के लिए ISBN आजकल महत्वपूर्ण है, और रस्ट के टाइम पर फिर अपनी छोटी छोटी बुकलेट के लिए उन पर नहीं डिपेंड करना होगा। तीसरे मैडम से हमें ये सीखना को मिला आज कि टॉपिक कोई भी हो, नहीं टॉपिक कोई भी हो, आप जाओ कैसे आप हाँ नहीं, और टॉपिक कैसा भी हो, हम गहराई से ढूंढ के नेट से और कहीं कहीं से निकाल लाते हैं सब्जेक्ट मैटर। और जैसे चर्चा हो रही थी पीछे, चौखंबा के अलावा हमारे वहाँ बनारस में तो मोतीलाल बनारसीदास का जो पब्लिकेशन था वो भी बहुत मशहूर है। पुराने ग्रंथों में जैसे बृहद इंद्रजाल और इंद्रजाल जैसे
ग्रंथ मिलते हैं, निश्चित सी बात है उनकी एक कॉपी भी दुर्लभ हो गई होगी। और हम लोग पास पढ़े हैं तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो अब शायद इनका लोग नाम भी नहीं जानते। कोक शास्त्र हो गया, वात्सायन कामसूत्र हो गए, ये कम छपते हैं, डिमांड कम है, क्योंकि आजकल तो फास्ट लाइफ वेस्टर्नाइज हो गया, तो हमारे उन मौलिक ग्रंथों का जो महत्व है वास्तव में इन भारत में धरोहर तौर पर वो आप नहीं मिलता है। तो ये सब शब्द है, इन्हीं शब्दों के साथ में उन शब्दों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अतिथियों ने आज अपना योगदान दिया ज्ञान हम लोग बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू कौन भाई। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्कार। आदरणीय जगदीश्वर डोमा जी से मैं समाप्ति की आशा करता हूं। आदरणीय जगदीश्वर डोमा जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो संक्षिप्त उपसंहार की आशा आपसे करता हूं। Respected Jagdishwar Doma ji, am I audible to you? चलिए, समय बहुत हो चुका है, रविवार है। मैं आशा करता हूँ आदरणीय सो चुके हैं। बहुत बहुत आभार मैडम पारुल जी, अग्निहोत्री सर, जगदीश्वर जी, लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, नितिन जी, आज के सभी स्पीकर्स, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे हेम्प के लिए और पंचायती राज के लिए। यदि हमारा कोई एसडीओ, कोई पंचायती राज के अंदर कुछ नॉलेज रखता है तो मुझे कृपा कर सुबह 7-8 बजे तक भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। थैंक यू वेरी मच।